Sir, and today we will be dealing with conditions in PT sports. Condition today that we will be covering will be, as we continued in the last class, spinal disorders. So we had covered PIVD in the last class, and just to cover it all, we'll just revise through what is PIVD. So PIVD is, what is it? Prolapse intervertebral disc. Very nice. In this, there's a case of we have intervertebral disc can be described as a cushioning cover which lies between the two vertebrae so that it can provide firstly act as a cushion plus it act as a shock absorber. All right. Also, it aids in the joint movement. Yeah. Okay. So PIVD is a condition in which the disc, which is present between the two vertebrae, it gets out of its place, or in layman language we call it a slip disc. So it's called a slip disc because the disc slips between the two vertebrae, and generally when it happens it can go to any of the directions. It can be either anterior protrusion, posterior protrusion, and very rare cases it can be lateral protrusion also. So whenever something happens which is not supposed to happen, it causes something in the body. Okay. So whenever the disc slips out of its position, it causes irritation in the nearby structures, and the nearby structures are the muscles, the tendons, and if it gets out, it can also irritate the nerves. So when it gets out of its place due to that irritation which is caused, there is a formation of inflammation around the place. That inflammation causes pain, spasm. So the first thing that inflammation does is, because a lot of fluid is accumulated, that causes initiation of muscle spasm. So what happens? The muscle gets very tight. That restricts the motion around the joint. Okay. Also, when the protrusion is too much, when it comes out posteriorly, which is the most common case, posterior protrusion, it irritates the nerve. That is, it keeps pressing on the nerve because the nerves goes through the backside of the vertebra. When the nerves are pressed, they get irritated, and we feel the sensation of pain, and the pain can either be localized or it can be radiating. And in the worst cases, with the sensory input, the motor output also is affected, which causes sensations of paresthesias, which the patients present as झंझनाहट या चीटी चलना या सुन सा महसूस होना. So that is the case in PIVD. So we had described how to assess the PIVD symptoms. So it was discussed. Which scale was it? Kubik's task force. So Kubik's task force was formed to assess any kind of severity of the neurological symptoms which are presented, in which we talked about stage 1 to 3, in which the first was only the pain is in the localized place, it is not radiating. Second was it is radiating, and majorly when we talk about PIVD, the two most affected areas are the cervical areas and the lumbar areas, and these two areas are common because the most part of the motion which happens in the spine is at two places only: cervical, because it involves our neck movement, which is at all the sides, and lumbar, in which we bend and rotate. So these two sides are the most common sides for any of the spinal conditions that we are going to discuss further. Also, we are going to discuss about whiplash injuries. Also, we are going to discuss about facet joint syndromes. So what happens is, whenever any joint, it is very mobile, any joint which is mobile is prone to injuries. Okay. And spine, why spine? Because spine is a structure in the body which supports the body, and it is the most weight bearing part of the body, that it supports whenever we are lifting any weight, or not even talking about the weight, it holds all of our body at one place. Okay. So talking about lumbar spine is more prone to injuries because, again, weight bearing is more on the lumbar spine. And also degenerative changes are more on the spine. Cervical is less on the degenerative side, but more on traumatic side, because we can injure our neck while playing, that is sports,
While accidents, that is the case of whiplash injuries which happens in a motor car accidents, or we can easily injure or affect the knee, the neck while sleeping. That is the bad postures also. So you all must have sometimes, woken up with a stiff neck, because sometimes what happens is while sleeping either we take too many pillows or we sleep in an awkward posture. So what happens is that awkward posture, it everything is related to the stress mechanism which is happening. Okay, so our body always maintains a homeostasis, so all the forces acting on a joint are balanced out. Okay, sometimes when the forces acting are not able to balance out, one side of the joint or one side of the muscle is more, active. If you're talking about muscles, the homeostasis is maintained between agonist and antagonist muscles. So agonist muscles are the muscles which act, and antagonist is which opposes. So always when there are when the body is at rest, both forces acting on the both the muscles, the fibers are contracting equally, so the body is at rest and the body is maintaining homeostasis. Whenever we sleep in an awkward posture, what happens is supposedly the neck is at lateral rotated. So one side of the neck, the muscle fibers are contracted more. Other sides are trying to, relax them, but they're unable to because we are sleeping. We are unaware of the posture. It can either be when we are sleeping. It can either be when in a sport, in a contact sport such as wrestling, when we hold opponent's neck, can be in a fight or can be in any of the accident. What happens because of that is when one muscle is more targeted, other is less, muscle strain happens. When these things keep on happening, so it cannot be a one day event, it can be a one day event, that is called a trauma, or it can be a many year event, that we don't realize, that is caused due to improper postures. So that improper postures for again and again, again and again, again and again for a number of years causes degenerative changes. So these degenerative changes are age-related changes. So 2 points in the cervical spine, the points are affected. The most common points are cervical, which level? Cervicals. C4, C5, Option number L5, L4, L5 and L5 and S1. So this was a brief about PIVD, which you guys missed in the last class. We diagnosed about, we were talking about the assessment. So cubic task force 1 is pain at the localized area, and task force 2 is radiating pain, but not below either elbow if it is in the cervical, and not below knee if it is in the lumbar zone. And grade 3 was when all part is affected, that is the hands also and the foot also, and there may be or may not be motor involvement, that is tingling sensation, but pain can be felt at the foot or in the hands. So the movement is progressive. When it reaches the hand, the pain may not be at the neck level, but it is present in the hand level. So while assessment, we have to ask the patient कि pain start कहाँ से हुआ था, फिर कहाँ पे था और आज कहाँ पे है. तो आज वो पेन बताएगा हाथ के अंदर, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट स्टार्टेड विद द हैंड. सो अ थॉरो असेसमेंट इज रिक्वायर्ड. Specific questions needed to be asked to the patient so that we can get a specific answer. Okay, and then we discussed about the treatment. In the medical treatment, we talked about giving NSAIDs, that are the non-steroidal anti-inflammatory drugs, which helps in reducing the inflammation because it causes inflammation, and helps in removing the pain also because they block the pain via the pain gate mechanism. Helps in removing the pain, but it is not a permanent treatment. Permanent treatment requires physical therapy. For physical therapy, we had discussed about many exercises which are called McKenzie exercises, or in layman language, or in some languages it can be called spinal extension exercises, in which the patient is asked to lie in the prone position, and then he is supposed to flex, extend the, first of all starts with the neck, because if a patient is of PIVD and degenerative changes for many years, he is having a stoop posture. So
at a point, if we ask him to lie on the couch in a prone position, he might feel very awkward or he might have pain while lying prone. So first of all, we have to acclimatize the patient to lie prone. We may give him some time. It is not necessary if it is a chronic pain. He might take 1 or 2 days or maybe 2-3 days. So first of all, we have to make the patient lie comfortably in a prone position. It can be assisted while keeping 2 pillows on the thorax and then removing them gradually. Can be the same day, can be the other day. And then finally, spinal extension exercises. First of all, lifting the neck of the bed, and then with the help of elbows getting off the bed, and then finally getting on all fours and raising of arms, and then contralateral arm and leg. That is how it is progressed. So that was PIVD. Now coming on to whiplash injuries. So what is a whiplash injury? What is whiplash? Any of you know what is whiplash? So sudden action or reflection change injury or survival. हाँ, पर whiplash क्या होता है? So sudden उसके हम एक्शन हाँ तो आप हाँ तो आप मेरे को whiplash इंजरी समझा रहे हो, मैं आपसे whiplash पूछ रहा हूँ. whiplash क्या होता है? आपने कभी हंटर या रस्सी देखी है? तो कभी हम रस्सी पे ऐसा झटका देते हैं तो पहले वो यूं होती है और फिर यूं होती है, तो दैट एक्शन इज कॉल्ड अ whiplash. ओके, सो उसी whiplash वर्ड से उठा के हमने उस इंजरी को नाम दिया whiplash इंजरी, जो सर्वाइकल में सबसे कॉमन होती है. और whiplash इंजरी का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. सो जब भी कोई कार में बैठा हुआ होता है और सडनली पीछे से आके बम्प लगता है, ये हमको ध्यान देना ज़रूरी है कि पीछे से लगता है. आगे से भी हो सकता है, दूसरी तरीके की whiplash होगी उसमें जब, लेकिन सबसे पीछे जब हम बैठे हुए हैं और जब पीछे से एकदम झटका लगता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी गर्दन पीछे की तरफ जाती है. इनर्शिया की वजह से इनर्शिया क्या करता है, हमारी बॉडी को मूव करने नहीं देता. लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो सडन मूवमेंट होती है. तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी नेक पीछे की तरफ जाएगी. उसके बाद पीछे जाने के बाद हमारी नेक झटके से आगे जाएगी और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी. But because the motion is very sudden and very jerky, okay, what happens is when the neck is extended, so the anterior structures gets affected, okay, and फिर जब वो आगे से जाती है तो वापस झटका होता है, the posterior ligaments and the structures get affected, और जब वापस आ जाती है तो वापस हम नॉर्मल होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि whiplash के तुरंत बाद, ज़्यादातर यही देखा जाता है कि whiplash के तुरंत बाद the person feels nothing except कि कुछ हुआ था. The symptoms come gradually. Okay, what happens is जब एकदम से लगता है तो उस समय कुछ भी नहीं होता. Many a times is also the case when you fall down, you get up and you start walking. Until the next day you sleep and get up. जो टायर्डनेस है या फिर जो स्टिफनेस है वो अगले दिन तक आती है. सेम whiplash के अंदर होता है. उस समय जब होता है तो आपको लगता है कि कुछ हुआ, बट यू आर ऑल फाइन. ओके, अनलेस द सिम्टम्स आर वेरी सीवियर. सीवियर कब होते हैं, जब नर्व्स अफेक्ट हो जाती है. नर्व्स में क्या होता है, जब आप झटके से पीछे जाते हो आगे जाते हो, बिकॉज हमारा नर्व्स तो नेक से भी निकल रहे हैं, वहाँ पे भी आ रहे हैं, तो जब नर्व्स भी खिंचती हैं तो हो सकता है उस समय हमको कुछ फील हो मोमेंटरीली, बाद में लेकिन वो ठीक हो जाए. तो whiplash के सिम्टम्स दे डेवलप ओवर अ ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम. और क्या सिम्टम्स दिखते हैं हमको, सिम्टम्स सबसे पहले दिखेंगे स्पैज़म हो जाएगा. सबसे कॉमन कोई भी इंजरी जो होती है, जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होती है, उसमें स्पैज़म एक कॉमन होता है. और स्पैज़म क्यों होता है अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है. इन्फ्लेमेशन होती है जब भी कुछ होता है तो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर क्या करता है, स्पैज़म हो जाती है. स्पैज़म में क्या करती है, मसल टाइट हो जाती है. और ये क्यों होता है, ये एज ए सेड इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. तो ये हम और मूवमेंट ना करें, जो जॉइंट है, अगर जॉइंट पे इंजरी है तो और जॉइंट मूवमेंट ना कर पाए, बिकॉज क्या होगा, जब ऑलरेडी इंजरी हुई भी है तो बॉडी चाहती है कि वहाँ उस जॉइंट को रेस्ट मिले उसको. तो बॉडी का रेस्ट लेने का ये सिम्टम होता है कि वहाँ पे स्पैज़म कर देता है ताकि उसको रेस्ट मिले. रेस्ट मिलेगा मतलब स्पैज़म होगा, स्पैज़म के साथ साथ पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंजरी है, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो पेन हो गई वहाँ पे. उसके साथ साथ क्या हो सकता है, अगर नेक पे हो रहा है, whiplash नेक में ही होता है, तो उस टेंशन की वजह से हमको हेडेक भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा स्कैल्प भी साथ में जुड़ा हुआ होता है. तो पीछे के जब भी नेक में कोई भी इंजरी की हम बात करते हैं तो इट कैन बी और कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद हेडेक्स. उसके साथ में हो सकता है कुछ न्यूरल सिम्टम्स हमको मिलें,
हाथों के अंदर हमको पैरेस्थीसिया लगे, नमनेस हमको फील हो, या फिर पैरेस्थीसिया से लगे कुछ, मतलब हम ऐसा तो लग रहा है कि टच है लेकिन पूरा नहीं है, इम्प्रॉपर जो टच होता है उसको पैरेस्थीसिया बोला जाता है। तो पैरेस्थीसिया हमको फील हो सकता है उसके अंदर। और क्या इसके अंदर मेजर सिम्टम हमको दिखता है व्हिप्लैश के अंदर? सब फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर हो सकता है, बिल्कुल। एटमॉस्फेयर फ्रैक्चर हो सकता है, वो सिवियर केसेस होते हैं। उन फ्रैक्चर्स में क्या होता है, डायरेक्ट सर्वाइकल इंजरी हो जाती है आपकी, तो स्पाइनल कॉर्ड सिवियर हो जाती है आपकी, तो आपको पैरालिसिस हो सकता है उसको। तो लेकिन ऐसे फ्रैक्चर्स भी होते हैं जो नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है, मतलब यहाँ तो इतना फॉलो नहीं होता, बट आप अगर फुटबॉल या रग्बी अगर आप देखते हो, कभी भी इंजरी होती है तो फटाफट सर्वाइकल एक हार्ड कॉलर आता है, हार्ड कॉलर लगा के और एक स्टिफ स्ट्रेचर के ऊपर, स्ट्रेचर ऐसा है जो स्टिफ हो, उसके ऊपर लेके जाते हैं एथलीट को। या फिर कभी जब एक्सीडेंट्स भी होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो बंदे को हिलाया नहीं जाता। आप कभी रेसेस देखते हो, मोटरसाइकिल रेसेस देखते हो, तो जब बंदा गिर जाता है तो उसको वहीं लिटाया दिया जाता है, मतलब उसको छेड़ते नहीं है। उसका मेजर कॉज ये होता है कि जब भी, जैसे आपने कहा कि फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन जब तक डिस्प्लेस नहीं हुआ वो, लेकिन हमने बंदे को खड़ा कर दिया। इंडियन टेंडेंसी क्या होती है कि जो गिर गया उसको तुरंत उठा दो, उठाने से वो ठीक हो जाएगा। उठाने से हम उल्टा उसको, अगर ऐसी तरीके कोई, स्पेशली अगर स्पाइनल इंजरी है, तो उसको हम मैनी फोल्ड्स इंक्रीज कर देते हैं, तो इट कैन बी डेडली ऑल्सो फॉर अ पेशेंट। तो वो झटका लग के फ्रैक्चर तो हो गया, लेकिन अगर हम उसको हिलाएं नहीं उस समय और हम डायग्नोस करें, तो हम उसको फ्यूज़ कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, और हम स्पाइनल कॉर्ड पे ट्रॉमा बचा सकते हैं। तो इसलिए फ्रैक्चर के साथ में और स्पाइन सिम्टम्स इंक्लूड हो सकते हैं। स्पाइनल कंप्रेशन हो सकता है, कंप्रेशन तक बात नहीं रुकती तो स्पाइनल कॉर्ड सिवियर हो सकती है, यानी कट हो सकती है। तो इट कैन बी आइदर अ कंप्लीट इंजरी और अ इनकम्प्लीट इंजरी डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी, ट्रॉमा। फिर हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। सो हाउ इज इट ट्रीटेड? सबसे पहले द ट्रीटमेंट इज टू गिव इट रेस्ट, ठीक है। अब रेस्ट कैसे देंगे? सर्वाइकल की बात है तो हम हार्ड कॉलर लगा सकते हैं, या फिर हमारा जो नेक कॉलर आता है वो लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, हम स्ट्रक्चर्स को डी लोड करते हैं, यानी डी स्ट्रेस करते हैं। स्पैज़म जब हुआ हुआ है तो उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, जकड़ के रखा हुआ है तो प्रिवेंट कर रहा है। जगह हम एक्सटर्नल कोई भी फिक्सचर्स दे देते हैं, जैसे हमने कॉलर दे दिया सर्वाइकल स्पाइन के उसमें, तो मसल्स को लगता है कि ओके, मतलब देयर इज अ सपोर्ट, सो धीरे धीरे दे स्टार्ट लूजनिंग अप ऑटोमेटिकली। वरना ओवर ईयर्स क्या होता है, कई स्पैज़म्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जब जिनको हम ट्रीट नहीं करते, हम इग्नोर करते हैं, तो ओवर टाइम पे जाके वो मसल्स जब इतनी टाइट रहती हैं तो एक तो वो अपना स्ट्रेंथ खो देती हैं, क्योंकि एक मसल के पास इतनी ही पावर है कि कुछ टाइम तक अपने आप को होल्ड कर सके। जब वो स्पैज़म में रहता है तो वही एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। एक तरफ की मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक तरफ की मसल ज़्यादा वीक हो जाती है, तो हमारा जो पॉस्चर है वो बिगड़ जाता है। यानी अगर इस तरफ की टाइट हो गई और इस तरफ की लूज हो गई तो हमारा जो नेक है वो हल्का सा डिविएट हो जाएगा। तो हम जब रेस्ट में भी बैठे रहेंगे तो हल्का सा डिविएटेड रहेगा। फिर सबसे पहले रेस्ट देना होता है, तो रेस्ट के लिए हम सपोर्ट देते हैं। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वो एनसेड्स आ जाते हैं। एनसेड्स के बाद में स्टेरॉइड के इंजेक्शंस आ जाते हैं, अगर ठीक नहीं हो रहा होता तो पेन किलर्स आ जाते हैं हमारे। फिर उसके बाद अगेन जब हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा 3 स्टेजेस पे बात करते हैं, अक्यूट, सब अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट केस क्या होता है, अप टू 0 to 7 डेज, एक एवरेज हमने बना रखा है। सब एक्यूट होता है 7 days to 7 weeks, और क्रॉनिक होता है मोर देन 7 weeks, ठीक है। तो इस केसेस में, अक्यूट केसेस में आपको क्या करना होता है, हमेशा अक्यूट केस में आपको पेन के ऊपर काम करना होता है, ठीक है, एंड स्पैज़म के ऊपर काम करना होता है। तो पेन के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास मोडालिटीज़ होती हैं। मोडालिटीज़ से पहले हम क्रायोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज इन एक्यूट कंडीशंस वी गो फॉर क्रायोथेरेपी और कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम गर्म लगाएंगे, फिर ठंडा लगाएंगे, फिर गर्म लगाएंगे, फिर ठंडा लगाएंगे। और स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं या फिर जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ होती हैं उसमें क्रायोथेरेपी देनी होती है। किस तरीके से देते हैं हम, एटलीस्ट आइस एप्लीकेशन करते हैं, आइस पैक बना के 15 से 20 मिनट तक, एवरी 2 to 3 hours फॉर अप टू 3 days। तो वो उसका क्या काम होता है क्रायोथेरेपी का, वो क्रायोथेरेपी क्या करती है, एक तो हमको पेन रिलीफ करती है क्योंकि पेन गेट को ब्लॉक कर देती है। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो हो रहा होता है, यानी जो हमारा स्वेलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसको कम कर देती है, बिकॉज आइस कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो जो हमारी वहाँ पे ब्लड सप्लाई है उसको कम कर देती है।
आइस उसका काम करती है, ठीक है। और स्पैज़म भी कम करती है। अब स्पैज़म कम कैसे करेगी? सो ऑलवेज यू शुड नो डैट जो आइस है यूजुअली उसको स्पैज़म करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ठंडी चीज़ है, स्पैज़म करती है, गर्म चीज़ है वो वैसोडाइलेटेशन करती है। बट प्रोलॉन्ग्ड जब हम आइसिंग करते हैं तो आगे जाके स्पैज़म को खोलना चालू करती है। तो इसलिए टाइम स्पेसिफाई करते हैं हम, जब हम आइस कर रहे हैं, क्रायोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं, सो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स और 15 to 20 मिनट्स उसको होना चाहिए। तो वो क्या करेगी? स्पैज़म धीरे धीरे खोलना शुरू करेगी। फिर हम साथ साथ मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास जितनी भी मोडालिटीज़ हैं हम सारी मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ टेंस, वी कैन यूज़ IFT फॉर कंट्रोलिंग द पेन। SWD हम शुरू में नहीं करते बिकॉज इट इज़ एक्यूट कंडीशन, ठीक है। फिर हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं क्योंकि पेन है वहाँ पे। अल्ट्रासाउंड क्या करता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, वो अंदर जाके हीलिंग स्टार्ट करता है। सो वी कैन यूज़ अल्ट्रासाउंड। स्पेसिफिक पॉइंट है तो और भी यूज़फुल है, जब हमको पता है कि कहाँ पर हो रहा है तो हम उसको भी कर सकते हैं। 2 या 3 ट्रिगर पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो ट्रिगर पॉइंट्स में ऑलवेज अल्ट्रासाउंड इज़ यूजफुल। अक्यूट फेज़ के अंदर हम यूजुअली कोई मूवमेंट्स करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करते हैं क्योंकि बढ़ सकता है। प्लस हमने अभी डिस्कवर किया था कि जब भी हमको विप्लैश होता है तो ज़रूरी नहीं है पहले दिन से ही हमको सिम्टम आ जाए। सिम्टम्स बाद में आने शुरू होते हैं, धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। जब हम मूवमेंट ज़्यादा करते हैं तब हमको ज़्यादा सिम्टम आना शुरू करते हैं। तो हम अक्यूट फेज़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में निकाल देते हैं, पेन पे काम करते हैं, स्पैज़म पे काम करते हैं और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, मतलब सपोर्ट रहे तो सर्वाइकल कॉलर लगा के रखेंगे। जब भी मूवमेंट मतलब हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे होंगे हम बोलेंगे कि कॉलर लगा के रखो, 7 दिन निकाल दो। 7 दिनों बाद जब देखते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा, जब हम पेन पे काम कर रहे हैं, हमको अपने ट्रीटमेंट का फ़ायदा मिल रहा है। ऑलवेज जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, व्हेनेवर वी ट्रीट, वी शुड ऑलवेज एनालाइज द इफेक्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, ओके। उस ट्रीटमेंट का अगर कोई फ़ायदा नहीं आ रहा तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम ट्रीटमेंट ही गलत दे रहे हैं, मतलब हम अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं, मे बी आर अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट वर्किंग, मे बी इट्स अ फॉल्टी मशीन, ठीक है, या फिर इंजरी बढ़ रही है, ठीक है। तो हमको वो देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर इंजरी बढ़ रही है तो हमको देखना चाहिए कि क्या हम सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। डू वी नीड टू रीमेक आवर शॉर्ट टर्म गोल्स। तो वो हमेशा जब भी आप सेशन देते हो, नेक्स्ट डे आप पेशेंट से पूछते हो कि कैसा रहा था आपका लास्ट डे का सेशन, ठीक है। उससे हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि बहुत बार ट्रीटमेंट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। कई लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता। बॉडीली चेंजेस भी होते हैं, कई जने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं लेने के लिए, ज़बरदस्ती लेते हैं, तो दे मे नॉट डू व्हाट वी आस्क देम टू डू एट होम, और दे आर जस्ट डूइंग द ऑपोजिट थिंग व्हाट वी आस्क देम टू डू। सो गेटिंग अ फीडबैक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ट्रीटमेंट अप्रोच, ओके। जब हम सब एक्यूट में आते हैं तब हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे मूवमेंट्स कराना शुरू करते हैं, उसको देखना शुरू करते हैं कि हर मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। दिस इज़ ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल द इन्वेस्टिगेशंस, ओके। मतलब जब भी इंजरी होती है तो इन्वेस्टिगेशंस हो जाने चाहिए, मतलब जस्ट टू रूल आउट एनी फ्रैक्चर्स और एनी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट। तो हम उसको मूवमेंट्स कराना शुरू करते हैं और अल्टीमेटली हमारा एजेंडा क्या होता है कि स्ट्रेंथनिंग करवाना उसका, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी? स्ट्रेंथनिंग में बहुत सिंपल है, एक तो हम ROMs कराते हैं, स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं धीरे धीरे, एंड देन सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। आई होप यू नो व्हाट आर सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। हम 6 डायरेक्शन में जो नेक की एक्सरसाइज करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जो बहुत लोग भूल जाते हैं बताना, आप जब बैठेंगे तो एक मिरर के सामने बैठिए। क्यों बैठे मिरर के सामने? क्योंकि आपकी एक्सरसाइज करते समय आपकी जो स्पाइन की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए, यानी गर्दन सीधी होनी चाहिए। अगर हम स्पाइन फ्लेक्शन में बोल रहा हूँ और वो यूं जोर लगा रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो नेक के ऊपर स्ट्रेस बढ़ा रहा है क्योंकि उसकी गर्दन सीधी नहीं है। कैसे होनी चाहिए एक्सरसाइज? गर्दन सीधी लगा के जोर लगा रहा है, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, बट लाइक दिस, okay. So we have to ask the patient to sit in the front of a mirror so that he can view himself कि जो उसकी posture है वो सही है कि नहीं है। तो स्पाइनल सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवानी है जिसमें हम 6 डायरेक्शन में फोर्स लगवाते हैं। सबसे पहले आगे लगवाएंगे, फिर इसके ऑपोजिट पीछे लगवाएंगे, फिर नीचे लगवाएंगे कि जैसे कि वो स्पाइन रोटेट अपनी नेक रोटेट कर रहा हो, फिर इसके ऑपोजिट दूसरा हो जाएगा, और फिर ऊपर लगाएंगे जैसे कि वो साइड टिल्ट कर रहा हो, फिर यहाँ लगाएंगे और इस तरफ लगवाएंगे। सो वील आस्क हिम टू होल्ड एंड प्रेस विद हिज हैंड एंड होल्ड विद हिज नेक एंड काउंट टिल वट एवर 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स जितना भी कर सकता है। दिस इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। पहले ही दिन 20 काउंट मत करवा देना, उससे स्पैज़म बढ़ सकता है। एक दिन में हम कभी भी नहीं करवाते।
जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं, असेसमेंट के टाइम पे हम देखते हैं कितना कर सकता है, और करवाने के टाइम पे धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हैं आगे। सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं, इसके लिए सर्वाइकल मतलब स्विफ्लैश के लिए यही परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। व्हाट वी एम इज टू अगेन स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर्स विच मे बी इंजर्ड इन द ट्रॉमा, ठीक है। विप्लैश के बाद हम आते हैं फेसेट जॉइंट सिंड्रोम के ऊपर, ठीक है। फेसेट जॉइंट सिंड्रोम क्या होता है? जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें हमें पता है कि एक मेन स्पाइनल बॉडी होती है और पीछे एक स्पाइन निकला हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड। आप सबने देखी होगी स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है, वर्टिब्रा देखी हुई है? वर्टिब्रा कैसी होती है, देखी हुई है? मेन बॉडी होती है, उसके बाद पीछे निकला हुआ उसका एक स्पाइन होता है। तो स्पाइन के जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, आपस में स्पाइनल कॉर्ड कैसे जोड़ती है, हमारी बोन्स जो भी हैं बॉडी में आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शंस होते हैं जिसको हम जॉइंट बोलते हैं। तो स्पाइन के लेवल पे दो मेजर जॉइंट होते हैं, एक तो जो हमारी बॉडी टू बॉडी जॉइंट होता है जिसके बीच में हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, और एक पीछे की तरफ जो स्पाइनल प्रोसेस आपस में जुड़ता है जिसको हम ज़ाइगोपोफेशियल जॉइंट भी बोलते हैं, वो मेजर जॉइंट होता है जो स्पाइन को होल्ड करके रखता है आपस में, जिसको हम फेसेट जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो पीछे स्पाइनल प्रोसेस आपस में जुड़े हुए हैं जिसको हम फेसेट जॉइंट कह रहे हैं, तो जब उसमें कोई दिक्कत होगी जाहिर सी बात है तभी हम उसको फेसेट जॉइंट सिंड्रोम बोलेंगे या डिसफंक्शन बोलेंगे। अब वहाँ पे क्या होता है? सो बेसिकली क्या है, दिस इज अगेन अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। डीजेनरेटिव डिसऑर्डर हमने अभी डिस्कस किया था क्या होता है, जब बहुत बार रिपीटेटिव मूवमेंट्स हम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर चेंजेस होना शुरू होंगे, डिजेनरेट होना शुरू होगा, जिसकी वजह से वो घिसेगा या उसमें अंदर कोई दिक्कत आएगी तो वो अफेक्ट होना शुरू होगा। तो फेसेट जॉइंट सिंड्रोम इज बेसिकली अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर विच हैपेंस इन द स्पाइन मेजरली आफ्टर 40 years of age, can be due to majorly repetitive actions, improper posture, or can be caused due to any other associated problems। और होता क्या है स्पाइन में, क्योंकि स्पाइन की इंटीग्रिटी हिल रही है तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक होती है। अब जब हम स्लिप डिस्क की बात कर रहे थे तो क्या देख रहे थे, स्लिप डिस्क में भी क्या होता है, जो हमारी डिस्क होती है इट इज़ फ्लूइडी स्ट्रक्चर, स्पंजी स्ट्रक्चर है, मेजरली पानी से बना हुआ होता है बॉडी। आर 70% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, ओके। सो वन ऑफ द पार्ट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑल्सो। तो इस डिस्क में भी डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्लिप मतलब डिस्क स्लिप ही हो, डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। उसमें क्या होता है, जब बार बार ये स्पंजी स्ट्रक्चर है, हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसका अराउंड मूवमेंट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड घूमे जा रही है, हमेशा काम कर रही है, धीरे धीरे इसमें भी जो वाटर लेवल है, कंटेंट है, वो कम होना शुरू होता है या डिहाइड्रेट होना शुरू होता है। जब डिहाइड्रेट होना शुरू होता है तो क्या करता है, जब किसी दो स्ट्रक्चर के बीच में आपने एक स्पंज डाला हुआ है, जब उस स्पंज में से पानी निकलना शुरू करेगा तो जो बोन्स है वो पास आनी शुरू हो जाएंगी। जब पास आनी शुरू होंगी तो क्या होगा, जब एक तरफ से पास आ रही है तो आसपास के जो सारे कनेक्शन है वो हिलने शुरू हो जाएंगे, उसके हिलने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, जो फेसेट जॉइंट है वहाँ पे भी फर्क पड़ेगा। ये जो स्पाइन है पास में आई तो जितना इनको होना चाहिए था, अब बॉडी तो हमारी वैसे ही है, अगर कोई 6 फीट का बंदा है उसमें जो एक नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम है, किसी हाइट पे पर्टिकुलर वर्टिब्रास बने हुए हैं, लेकिन जब वो वर्टिब्रास की हाइट कम हुई तो बंदी की हाइट तो अभी भी 6 फीट है, तो क्या होगा, बायोमैकेनिकल चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो स्पाइनल की इंटीग्रिटी है वो हिलनी शुरू हो जाएगी। वो इंटीग्रिटी का फ़र्क फेसेट पे भी पड़ेगा। या फिर जब फेसेट जॉइंट डायरेक्ट अफेक्ट हो जाएंगे किसी वजह से, कोई भी पैथोलॉजिकल रीज़न हो सकता है या फिर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ज़्यादातर तो डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जब वो इफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो आगे भी इफेक्ट डालेगा, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं मोस्टली चीज़ें। इसलिए जब भी बैक पेन होता है तो अगर हम आगे की बात करते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट द यंग एडल्ट, इफ यू टॉक अबाउट 40 एंड अबव, तो अगर PIVD होगा तो उसके साथ साथ फेसेट भी दिखेगा, फेसेट होगा तो उसकी वजह से PIVD प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन बैक पेन होगा, ठीक है। तो इसलिए बैक पेन एक ऐसी चीज़ है जिसमें डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीइंग स्पेशली अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत जने दिखेंगे बैक एक जो आपके पास आएंगे बैक एक लेके, मेजर आपका जो पार्ट होगा वो बैक पेन से रिलेटेड या नेक पेन से रिलेटेड होगा। आजकल तो नेक पेन मोस्टली कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत ज़्यादा विजिबल है,
बिकॉज अगेन पोस्चरल चेंजेस हो रहे हैं, वो लोग दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं, ढंग से पोस्चर मेंटेन नहीं करे, अर्गोनॉमिक्स गलत है, गर्दन नीचे करके दिन भर नीचे देख रहे हैं, जो एक हाइट पे होनी चाहिए चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से स्पॉन्डिलोलिसिस हो सकता है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकता है। तो सब कुछ फेसेट जॉइंट को अफेक्ट करता है। तो जब हमारे फेसेट्स हैं जॉइंट के ऊपर जब वो अफेक्ट होते हैं तो उसको हम फेसेट जॉइंट सिंड्रोम बोलते हैं। कॉजेज़ में क्या आते हैं, डिजेनरेटिव कॉजेज़ आते हैं, या फिर अगर पीआईबीडी की वजह से जो चीज़ें होने वाली इंटरलिंक की होने वाली हैं उस वजह से आता है। अब इसके क्या सिम्टम्स हैं या इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, हमको वहाँ पे लोकलाइज्ड पेन प्रेजेंट होता है। जैसे अगर ये भी सबसे ज़्यादा सर्वाइकल पे होता है और लंबर पे होता है, थोरासिक में भी हो सकता है, काफ़ी कम है। तो थोरासिक सर्वाइकल में कब होगा, जब हमारे नेक पेन होगा, ठीक है। थोरासिक में कब होगा, जब मिड बैक होगा। लंबर में कब होगा, जब हमारा जो पेन है वो लोअर बैक में हो रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा ये नेक में भी देखा जाता है, बट ज़्यादा ये लंबर में ही देखा जाता है। और पेन होगा, स्पैज़म होगा, वही सारे सिम्टम्स हैं। इट मे रेडिएट, इट मे नॉट रेडिएट। रेडिएट कब होगा, जब स्पाइनल का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। और फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे हम, इसकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे हम, एक्सरेज देखेंगे हम। एक्सरे में हमको जो जॉइंट इंटीग्रिटी है वो हिली हुई दिखेगी, जॉइंट स्पेस रिड्यूस दिखेगी, डीजनरेटिव चेंजेस दिखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस दिखेगा, बोन की डेंसिटी कम दिखेगी हमको, तो हम समझ जाएंगे कि इसको वो है। फिजियोथेरेपी इवैल्यूएशन की बात आएंगे तो हम अपना असेसमेंट कैसे करेंगे, हम बस अपना असेसमेंट्स करेंगे मूवमेंट्स करा के। हम नेक लेवल पे मूवमेंट्स कराएंगे, अगर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मे बी ये फेसेट जॉइंट्स की वजह से हो सकता है। उसको कंफर्म कैसे करेंगे, स्पाइनस प्रोसेस पे जब हम मूवमेंट कराएंगे तो जो टेंडरनेस होगी वो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर होगी। तो जो फेसेट्स होते हैं स्पाइनस प्रोसेस पे ही होते हैं, तो जब हम उनको पैल्पेट करके देखेंगे मूवमेंट के टाइम पे तो पर्टिकुलर पेन वहाँ पे प्रेजेंट कर रही होगी, विच विल मेक अस अज्यूम, 100% तो हम अभी भी श्योर नहीं होंगे, बट वहाँ से होगा। 100% होने के लिए तो हमको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होंगी, जिसके अंदर एक्सरेज होंगे, एमआरआईज होंगी। फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में क्या आएगा, ट्रीटमेंट में क्योंकि हमने देखा क्योंकि इसकी जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो हम एम करेंगे कि वही अगेन अक्यूट सब अक्यूट क्रॉनिक पे आ जाएगा। तो फेसेट जॉइंट क्योंकि डीजनरेटिव है तो अक्यूट पेन इसमें मोस्टली नहीं मिलेगा। मिलेगा तो किसी ट्रॉमा की वजह से सडनली चालू हुआ होगा या जर्क की वजह से चालू हुआ होगा, हमको उस पर काम करना होगा। वरना ये कैसा पेन होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, और क्योंकि थोड़ा थोड़ा पेन होता है तो हम उस पेन को इग्नोर कर देते हैं, हम समझते नहीं कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा होते 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 एक दिन ज़्यादा बन जाता है, और ये वो वाला पेन होता है जिसमें हमको जब हम सुबह उठते हैं तो हमको ज़्यादा हो रहा होता है, वो फेसेट जॉइंट का होता है। क्योंकि पोस्चरल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, तो जब हम सोते हैं तो हमारी क्योंकि स्पाइन की इंटीग्रिटी बिगड़ी हुई है, तो लेटते हैं जब हम तो हमको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। जब रेस्ट नहीं मिल पाता तो स्पैज़म ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होता है तो हम उठते हैं, भी गेट अप विद द बैक पेन, बट हम जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं हमारी मसल्स मूव करती है तो वो स्पैज़म खुल जाता है एंड वी फील फाइन। तो पेशेंट आपको बोलेगा कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी बैक स्टिफ होती है, लेकिन मैं मूवमेंट करता हूँ तो मैं नॉर्मल फील करता हूँ, फिर मेरा दिन सही निकल जाता है। फिर जब मैं लेटता हूँ तो मेरे को लेटते समय, जब भी मैं पहली बार लेटता हूँ दिन में, मतलब रात को खड़े हो गए, तो मेरे को एकदम से डिस्कम्फर्ट होता है, फिर ठीक लगता है, मैं सो जाता हूँ, लेकिन उठता हूँ तो वापस से कमर दुख रही होती है। तो हमारा एम ये होता है कि सबसे पहले तो उसकी अगर पेन है तो हम उसकी पेन ख़त्म करें। फिर असेसमेंट में हम देखते हैं कि उसकी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो रही है, इसके लिए हम जॉइंट की स्ट्रेचिंग करते हैं। सो वी एम फॉर ऑल लोअर बैक स्ट्रेचिंग, और सर्वाइकल में है तो अपर बैक स्ट्रेचिंग भी आती है, अपर लिम्स भी आ जाते हैं उसके अंदर। तो जब भी हम स्पाइन की बात करते हैं तो स्पाइन के आसपास जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमको उन पे काम करना पड़ता है, अगर हमको पूरा काम करना है तो। सिर्फ स्पाइन पे काम करने से काम नहीं चलता। फिर मूवमेंट बढ़ाने के लिए ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है, ज़्यादा क्रॉनिक पेशेंट होता है तो हमको मोबिलाइज करानी पड़ती है, स्पाइन की मोबिलाइजेशन करानी पड़ती है। मोबिलाइजेशन करने से क्या होता है, जो स्टिफ स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्पाइन एकदम जुड़ चुकी होती है, हम उनको खोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस को और उसकी मूवमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। आसपास के जो काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं मोबिलाइजेशन करने से उनके अंदर भी जब मूवमेंट होती है तो दे ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग फ्री। एक तरह की स्ट्रेचिंग होती है उनकी डीप स्ट्रक्चर्स की मोबिलाइजेशन से। जब डीप उनकी स्ट्रेचिंग होती है, मोबिलाइज करते हैं, तो देन थोड़ा थोड़ा रेंज ऑफ मोशन बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर मूवमेंट्स कराते हैं एंड अल्टीमेटली स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। इसके लिए कैट कैमल एक्सरसाइजेज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्ट्रेचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और कोर एक्सरसाइजेज की स्ट्रेंथनिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट फेसेट जॉइंट सिंड्रोम।
So this was about a review about PIVD, and then we read about whiplash, and then we read about फेस सिंड्रोम syndrome. तो इस सिलसिले में आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए, आई विल क्लियर देम आउट. एंड आप लोग थे नहीं लास्ट टाइम, तो मैंने आपको बोला था कि आप जितनी भी स्पाइन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं आप देख के आएंगे, और वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे हमारे प्रैक्टिकल के अंदर. तो आज आप सब हो, सबके लिए कॉमन असाइनमेंट है. एक तो आपका असेसमेंट के लिए जो क्यूबिक टास्क फोर्स ग्रेडिंग है वो पढ़नी है, वो असेसमेंट आपको स्पाइनल में पूरे में काम आएगा. सेकंड, आपको स्ट्रेचिंग देखनी है कि कैसे कैसे बैक को स्ट्रेच किया जाता है, और स्ट्रेंथनिंग कैसे कैसे की जाती है. तो कोर स्ट्रेंथनिंग है, बहुत सिंपल है, पढ़ के आएंगे फिर हम सारा परफॉर्म करेंगे उसको. सो दैट विल बी द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट. सो आई थिंक स्पाइन के अंदर एक चीज़ और होगी, हम वो कवर करेंगे, एंड देन विल मूव आउट टू अदर जॉइंट्स, और धीरे धीरे करके फिर हम सारे जॉइंट्स कवर कर लेंगे इसके अंदर. दैट इज आई विल डू इट. एनी क्वेश्चंस?